Hello everyone and welcome to our day one of CA final teaching. I CA Kunchit Goyal is going to start our teaching of AFM and AFM module starting with our forex chapter. This is my first video of my teaching and in upcoming days we'll master all our AFM subjects, AFM chapters starting from forex to end till IRM or RM, whatever it is. Since this is my first video, we'll go very slow. We'll talk about each and everything in deep with clarity. Anything in your question in your mind, please note it down and comment over my video. I'll answer you each and every question. Secondly, since this is my first video of my teaching, this is my first experience of my teaching. I will try my level best to do and provide each and every note, every concept with clarity, with every, like I would say, deep conceptual clarity. Secondly, now the people should have a question in mind that why should they watch this video? Why should they watch this video of AFM from me? Firstly, I am not here about selling out my subject or I'm going to do something. This video is more about my मुझे पढ़ाने का शौक है, तो it is like about teaching, it is about learning, it is about how can I benefit from my learnings to you. So in this over upcoming days, over the next several days, we will learn about forex, about IRM, about derivatives, about risk management, capital budgeting, each and everything in deep down and in detail. So before I start this video, I would tell that I, as a CA final student, a CA final, I got 75 approx in AFM. I am starting this video with my first chapter, that is forex. Anything doubt in your mind, please comment it down. This is about just learning. I'll try to improvise every day. Every day I'll try to improve myself, my teachings, my way of teachings, my way of explaining you guys. So let's begin with our first chapter, day one, forex. Let's take a basic example first of all. When we talk about forex, many people have fear in the mind, क्योंकि क्या होता है, सीनियर से सुना होता है कि फॉरेक्स बहुत टफ होता है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी है, समझ नहीं आता. आसान भाषा में बात करते हैं, जब भी हम फॉरेक्स की बात करेंगे हम हमेशा बात करेंगे रुपी पर डॉलर की. कितना भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन को ना रुपी पर डॉलर के हिसाब से बात करना. मान के चलो क्वेश्चन आ गया जैपनीज येन बाय यूरो, JPY बाय यूरो. अब क्या करेंगे हम इसमें, मान के चलो क्वेश्चन आया JPY बाय यूरो. क्या लिखा मैंने यहाँ पे, JPY बाय यूरो. अब क्वेश्चन में क्या हुआ ना, जैपनीज येन बाय यूरो आ गया कि हाँ भाई ये जो है वो दे रखा है हमारा 0.80, कि एक येन की कीमत कितने यूरो के बराबर होगी, 80 पैसे मान के चलो उदाहरण के रूप में. तो हमें ना, अब हमें क्या होगा, हम समझ नहीं अगर एक करेंसी कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है. आप सोचो यही रुपया डॉलर होता, हमने रुपया डॉलर तो सबने सुना है, बचपन से सुना है ना. क्या होता है रुपया डॉलर, हमने क्या करा, रुपीज़ पर डॉलर को लिखा. मान के चलो जैपनीज करेंसी हमने लिख दी रुपी और यूरो को लिख दिया डॉलर. अब कितना आसान हो गया कि रुपी पर डॉलर कितना है, 65 रुपया. कि हाँ एक डॉलर की कितनी कीमत है भाई, बोले 65 रुपया. आज तो चलो 100 रुपये हो गए, जब मैंने पढ़ता था, जब मैं CA फाइनल में, तब 65 रुपया था, 65. तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. क्या करते हैं, मान के चलो एक इंडियन कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया से कोई सॉफ्टवेयर, कहाँ पे, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और वहाँ से ना उसको $1,00,000 मिलते हैं. अब क्या होता है, कंपनी को, जैसे मान के चलिए एक बंदा है राम जो अपना सॉफ्टवेयर बना के बेचा अमेरिका से उसको $1,00,000 मिले. अब वो बाज़ार में जाएगा तो डॉलर में तो माल मिलेगा नहीं उसको, बाज़ार में मतलब इंडिया के बाज़ार में.
तो अब वो क्या करेगा, उस डॉलर को बेच के रुपया लेना चाहेगा। तो जब वो डॉलर को बेचेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि डॉलर का बेचेगा तो इस टाइम पे क्या एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। एक्सचेंज रेट क्या होगा, एक डॉलर की कितनी कीमत है, मान के चलो एक डॉलर की कीमत है 85 रुपीज़। एक डॉलर की कीमत आई हमारी 85 रुपीज़। अब क्या होता है, 1 लाख डॉलर आए, उसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो अब उसको 1 लाख डॉलर का एक्सचेंज प्राइस 85 कितना आ गया, 85 लाख डॉलर। इतने तो आसान है, देखो कितना आसान है फॉरेक्स। अब क्या होता है, मान के चलो जब उसने माल बेचा था, जब उसने माल बेचा था तब डॉलर का प्राइस था 83 रुपीज़ या 85 रुपीज़ या 84 रुपीज़, जो भी आप ले लो। चलो अभी मान के चल रहे हैं डॉलर का प्राइस था 83 रुपीज़, और आज जब वो बेचने निकला तब निकल गया 85 रुपीज़। तो उसको तो फ़ायदा हो गया ना, 2 रुपये का। पहले 83 के हिसाब से 83 लैक्स मिलते, आज कितने मिल रहे हैं, 85 लैक्स। तो अब उसको क्या होता है ना, दो चीज़ों का डर हो गया। किस चीज़ का, कि मैं डॉलर बेचने जाऊँगा, क्या पता डॉलर गिर जाए, क्या पता डॉलर बढ़ जाए। तो अब होता क्या है, यहाँ पे 1 लाख डॉलर आने थे, 1 लाख डॉलर आए, बाजार में बेचने गया। जब मैंने सॉफ्टवेयर भेजा था तब 83 का प्राइस था। अब यहाँ से या तो प्राइस 80 भी हो सकता है या तो प्राइस 85 भी हो सकता है। हम बेचने गए, हमारी किस्मत अच्छी थी, 85 मिल गया। नहीं अच्छी होती तो 82 भी मिल जाता, तो घाटा भी हो जाता। तो उसके लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर लेते हैं कि भैया कल के दिन हमें घाटा ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ अपवर्ड डाउनवर्ड के हिसाब से हम बैंक में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कई सारी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई मैं तुमसे सौदा कर रहा हूँ, आज मेरा पैसा आएगा 30 दिन बाद, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, मैं उसको इस रेट पे बेचूंगा, चाहे उस दिन रेट चाहे कुछ भी हो। तो उससे हम अपने आप को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हमने क्या सीखा, एक्सचेंज रेट चाहिए होता है हमारे को। कोई भी करेंसी हो हम हम उसको फॉरेन एक्सचेंज में तोड़ेंगे। अब आते हैं, छोटी सी बात करते हैं। अब सब लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई सर सब कुछ तो बता रहे हैं आप, धीमे धीमे ये तो बताओ फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज में जब हम बात करते हैं, बात करते हैं फॉरेक्स की। FOREX, फॉरेक्स में एक्सचेंज करना, मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना। हमारे लिए करेंसी क्या है, इंडियन करेंसी है। बाहर की सारी करेंसी क्या हो गई, फॉरेन करेंसी हो गई। अब ये आता है कि सवाल पहला कि फॉरेक्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, फॉरेक्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं। भाई अमेरिका में कुछ काम रेट से हो रहा है, इंडिया में कुछ रेट से करेंसी चलती है। फॉरेक्स करते हैं एग्जिस्ट इसलिए क्योंकि एक तो यूनिवर्सल डॉलर का आजकल तुम्हें पता है कि यूनिवर्सल प्राइस है, डॉलर ट्रेड करेंसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में काम आता है, टूरिज़्म में काम आता है, हेजिंग करेंसी रिस्क में काम आता है। अभी हम धीमे धीमे सारे टर्म्स को समझेंगे भी। अब जब हम AFM की बात करेंगे, जब हम CA फाइनल AFM की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें थ्योरीज में भी पढ़ेंगे, जैसे एक्सचेंज रेट थ्योरी, IPP जिस पे कहते हैं, IRP, PPP, फॉरवर्ड रेट की बात करेंगे, हेजिंग रिस्क की बात करेंगे, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब जब हमने बात करी फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में हमने क्या बोला कि ये करेंसी कन्वर्जन के लिए बात करते हैं। इसका पर्पस क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, हेजिंग। अब सब कुछ शुरुआत कर दी। पहले ये बात करते हैं कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि भैया इसकी जो वेटेज है CA फाइनल में वो 10 से 14 नंबर की आती है, ठीक है। तो अब एक ना छोटा सा सवाल करते हैं, सब लिख लेते हैं कि आप ना मान के चलो एक इंडियन इम्पोर्टर हूँ, मैं एक इंडियन इम्पोर्टर हूँ। मैं जापान से एक गुड्स मंगा रहा हूँ। मैं जापान से कह रहा हूँ यार मेरे घर में ना मॉड्यूलर किचन बननी है, तो आप आ जाओ जी, मॉड्यूलर किचन के लिए सामान भेज दो। तो आपको कौन सी करेंसी चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी, बताओ सोचो, जापानीज़ येन चाहिए होगा, क्योंकि भैया आप तो जापान से माल खरीद रहे हो, आप तो पैसे दोगे। और जब आपको पैसे दोगे तो आप क्या करोगे, रुपए के बदले जापानीज़ येन खरीदोगे। तो जापानीज़ येन का रेट चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, आप येन बाय करोगे और रुपया बेचोगे, ठीक है। अब ना छोटी सी बात आती है, इसमें एक टर्म आता है डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। क्या शब्द आता है, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोटिंग क्या होती है कि एक फॉरेन करेंसी है, मान के चलो
रुपया डॉलर की बात हम लेके चलते, ज़्यादा ना टफ नहीं करते हैं इसको, धीमे धीमे लेके चलते हैं, आसान भाषा में बात करते हैं। रुपया डॉलर की बात करते हैं। हमने क्या करा, डायरेक्ट कोट की जब हम बात करते हैं तो हमारा $1 कितने रुपए का है? डायरेक्ट कोट कितना हुआ? बोले जी 100 रुपये का है। तो डायरेक्ट कोट कितना हुआ? 100 रुपये। तो एक जो हमारा $1 का प्राइस कितना आया, रुपी पर डॉलर दिया, बोले जी 100 रुपये का डायरेक्ट कोट है जी। INR भी कोट कर रखा है, INR में कोटेड है, फॉरेन करेंसी जो बेस हो गया, मतलब हम जब लिखते हैं रुपीज़ पर डॉलर, तो डॉलर क्या है? हमारी बेस करेंसी। जो बेस करेंसी है यानी एक यूनिट की बात कर रहे हैं कि रुपीज़ पर डॉलर, $1 की कीमत कितने रुपया है, डायरेक्ट कोट जब बात करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं, मान के चलो लिखा होता है $1 पर रुपीज़, क्या लिखा होता? $1 पर रुपी, तब ये होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या होगा? हमारी होम उसमें क्या नाम है कि फॉरेन करेंसी का कोट INR में कितना है। इनडायरेक्ट कोट क्या होगा? INR का कोट फॉरेन करेंसी में कितना है। मान के चलो $1 की कीमत कितने डॉलर होगी, तो क्या होगा जी? $1 की कीमत बोले जी 1/100, इतनी हो गई जी। उदाहरण के रूप में उल्टी बात कर लेते हैं, यही हो गया, वहाँ 100/1 हो गया, यहाँ 1/100 हो गया, इतना सी बात है, आसान बात है। तो यहाँ पे बेस करेंसी क्या हो जाएगी हमारी? रुपया। अभी ना आज की क्लास में हम ना खाली वर्बल बात कर रहे हैं, आने वाली क्लासेस में धीमे धीमे मैं ना ये शिफ्ट कर दूंगा कि बोर्ड का और ये सब चीज़ें ले आऊँगा, ठीक है। अब आते हैं ICI की बात करते हैं। ICI क्या करता है? ICI जनरली डायरेक्ट कोट बात करता है। ICI कहता है क्वेश्चंस में आपको पहली बात तो भटकाएगा नहीं, बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे ICI भटकाता है। ICI ने पिछले कई सालों से ऐसा पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादातर डायरेक्ट कोटेशन की दिए हैं। डायरेक्ट कोटेशन मतलब रुपया पर डॉलर दिया है, डॉलर पर रुपया नहीं दिया है। क्या दिया है? रुपया पर डॉलर, डॉलर पर रुपया नहीं दिया है। जैसे रुपीज़ पर डॉलर दे दिया 83 रुपये, 83 रुपीज़, रुपीज़ पर डॉलर दे दिया 85 रुपीज़, या फिर रुपी पर यूरो दे दिया 100 रुपीज़। तो वो डायरेक्ट कोट है कि €1 की कीमत कितनी है, $1 की कीमत कितनी है, $1 की कितनी है, ऐसे ना, मतलब आप समझ रहे हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं कुछ सवाल देता हूँ, मान के चलो आपका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रुपीज़ पर डॉलर जो दे रखा है 83 दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि $1 की कीमत कितनी है डॉलर में, हमें मतलब डायरेक्ट कोड दिया है, हमें इनडायरेक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/83 कितना आ जाएगा? 0.012। सिंपल, कोई दिक्कत? खुद से ट्राई करके देखना, 1-2 सवाल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूँ। फॉरेक्स हम धीमे धीमे करेंगे, बहुत निपट जाएगा। मैं धीरे धीरे ना क्लासेस के रिवीजन्स भी डालता रहूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, जल्दी करते रहेंगे। अभी मेरी खुद की पहली वीडियो है, खुद की पहली टीचिंग की वीडियो है, तो इसको धीमे धीमे चलते हैं। मेरे लिए भी धीमे, आपके लिए भी धीमे, ठीक है। आज के लिए अगर आप कहोगे इतना ही चलते हैं, मैं को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और कल के लिए हम बढ़ेंगे बिड आस्क स्पॉट। कल नहीं, मतलब हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो आज शाम को ही आ जाए, हम जिसमें बात करेंगे बिड रेट की, आस्क रेट की, स्पॉट रेट की, ठीक है। ओके, बाय। बताना मुझे, धीमे धीमे इसको प्रोग्रेस करते हैं।